especially India, CTS and all government jobs positions. And according to new education policy or the NHCF, it is very important to understand whatever I'm saying today, because very few people, especially from our community, are able to see this. Please change the slide, ma'am. Change the slide. Who's changing the slide? Farhan ma'am, slide change kar dena. So this is a PPT which I presented for AMP, which I'm repeating it because it's one of the fantastic PPTs which I already discussed. And as you know, whenever I repeat something, I don't say the same thing. I say something else. This is also available on YouTube. Slide change karo na. Okay, so something about Anis classes. We are working for the last 35 years. We are education providers, especially in the field of defense and competitive exams. So the testimonial that I have for you is that 650 plus students from my academy are officers in the Indian Army, Navy, Air Force. Next one. Yeah. So this is the first slide which I want to share with you, and I want comments on this. So what I've written is mathematics is not just a question answer type. It should be answer question type. And for you all, there is a book which I'll share with you, The Philosophy of Education by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And 1400 years ago, our Prophet, मेरे नबी ने क्वेश्चन आंसर नहीं, आंसर क्वेश्चन टेक्निक इंट्रोड्यूस किया था, जो हम लोग भूल गए, which was there in madrasas and other institutes. So we should be able to, the children should be able to ask the question who, what, when, where, why, how, and by whom. For example, who. So who is taking the lecture? In my case, I am Anis Kutti. What am I talking about? I am talking about nursery to Naukri. You can write down, somebody write in the chat box. Farhana ma'am, किसी को लिखो chat box में, नर्सरी से नौकरी तक, मेहनत से मंजिल तक. Please somebody write in the chat box, नर्सरी से नौकरी तक, मेहनत से मंजिल तक. When Sunday on the MFIRD platform, especially for those think tank who want to bring change in the society through education, where this is taking place on Zoom, and it will be available on the MFIRD site also. Why? It is necessary for everyone to understand that if you want to change the society, that can be changed through education. Iqra was the first surah that was Nazil jo hua tha na, wo Iqra tha. That means read. Yeah. Jazakallah. Muhammad Alim sir, very fantastic. Thank you for doing that. Sonali ma'am, thank you for joining. How do you bring a change in revolution? And that can be done through education. Education कहाँ से? मेहनत से लेके मंजिल तक, नर्सरी से लेके नौकरी तक. Education for everyone. Education for enlightenment. Please somebody can write. Education for everyone. Education for entrepreneur. डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता. अमीन भाई ना बेंगलोर वाले, वो हमेशा बोलते हैं कि नीट और जेडब्ल्यू के अलावा किसी को नहीं. Doctor and engineer. There is a thing called prom now. They will be making more money. I was in there is a place, Christian-dominated area, where everybody is in Canada or Germany, and they are making more money than the doctors. It should be a profession. I spent 35 years doing this. Very proud that you can there was a net problem. Now I think it will be visible. Audible. Am I audible? Please say yes or no. Am I audible? Hello. Am I audible? Okay, thank you. Rashid sir, fantastic. So one thing that you have to understand is there should be 12 hours of class. Sonali ma'am, please ask all the staff to attend. All our children should attend.
Non-teaching staff should also attend. I'll be speaking for an hour. 12 hours पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं. 12 hours में से 24 hours में से 12 hours we should be able to educate our children. If we are not, any institute is not working or any child is not working more than 12 hours for his passion, then that cannot be his profession. Remember this. 12 घंटे से ज्यादा पढ़ाई होना जरूरी है. First one. So our teachers are qualified, but other than qualification, it is also necessary to deliver. The previous slide, yeah, I'm talking on that. There should be day out sessions for the children. अगर आपका 45 का लेक्चर है, 40 मिनट्स का टीचिंग होना चाहिए, 20 मिनट्स बच्चे बात करना चाहिए, 19 मिनट्स द प्रीवियस स्लाइड मैम, नॉट दिस वन, 19 मिनट्स टीचर बात करना चाहिए, 1 when it is for retrospection or mahasabha, and 5 minutes after every lecture stop before 5 minutes before and let the child be asking a question. Question answer technique is very important. Answer question technique. अगर बच्चों ने सही सवाल पूछा ना तो आधा जवाब है, और वो सवालों का सिलसिला नहीं है, इसलिए एजुकेशन मार खा रहा है. एंड देयर शुड बी स्पेशल एजुकेशन फॉर स्लो लर्नर्स. फिल्टरिंग होना चाहिए, 100% फिल्टरिंग होना चाहिए. लेकिन फिल्टरिंग में क्या होता है, स्लो लर्नर्स को छोड़ देते हैं. हम कमजोरों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए. राइट इन द चैट बॉक्स, एडीसीआई कमजोरों का हाथ नहीं छोड़ते. अच्छा जो टीचर होता है ना, वो कमजोरों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए. The next point is a proper attendance system. Use RFID. Now AI generated cameras market में आ चुके हैं. Emotions भी trace कर सकता है. बट क्लास में बच्चा आने के बाद उसका क्या इमोशंस है वो भी ट्रेस कर सकता है. तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. Every month parent teacher should be there. Parent should know what the child is doing. Even मदरसे में अगर हमने बच्चों को हाफिज बनाने भेजा, इमोशनल ड्रेन होता है. हमारा काम है कि बच्चा हर महीना हम बच्चों को विजिट कर रहे हैं, नहीं कर रहे. Every month is that is the priority that the parent should visit the child, or the parent should go to the school. Online is also important. Offline is also important. Testing is important. 7 physical sports important. Psychology important. Four things I always talk about is maths, English, aptitude. Next. Next slide, please. So, sorry for the disturbance. I am in a place where the net is not strong. No. Meeting. So, voice has not come now. I think the voice is. Are you able to hear? There was some problem with the net. I'm continuing now. The next slide, please. Yeah, there are 3 ways of learning, which I call it as Amar Akbar Anthem. One is the traditional learning, जो सबको पता है. The online studying. Third is the hybrid learning. So this is what I learned Amar Akbar Anthem. Previous slide, man. Yeah. Digital learning होता है, digital learning होता है, activity based learning. So this is the 3 types of learning. You can take a screenshot. You can ask me the question later on. But this activity-based learning is of very prime importance, especially after COVID. Next slide. Digital learning में 20% बच्चों को ही समझता है. Traditional learning में repeat करना पड़ेगा. लेकिन activity-based learning में easy पड़ेगा. घंटों का काम मिनटों में होगा. Please share the next slide.
Any questions that you have to ask? I always call it as Amar Akbar Anthony. So effective classroom management is also important. Sometimes the students are good, the children are good, the environment is good, but the teacher and the child are not able to use the classroom properly. So there are certain points where you can use the effective classroom management is very important. For that, the first thing that I talk about is cooperation. There should be a non-teaching staff in the class. Other than the students and the teacher, there should be a non-teaching staff. There should be disciplining from the classroom. I follow the concept of mother teacher. एक क्लास में 3 टीचर होना चाहिए, एक मेन टीचर और 2 सबऑर्डिनेट टीचर, असिस्टेंट टीचर्स. And in that class, hello, the meeting effective methods to solicit cooperation is very important. Discipline is important. Communication to motivate children is important. Motivation very important. Children they don't listen. कभी कभी अपने क्लास में देखा पीछे बच्चा जाके सो जाता, तो उसको उठा के आगे बिठाने का, एक्सरसाइज करवाना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ये सर्कल टाइम है ना, सर्कल टाइम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सर्कल टाइम मतलब हल्का लगाना. पुराना गुरुकुल सिस्टम, पुराना मदरसा सिस्टम, जहां हम हल्का लगा के बच्चों को पढ़ाते थे. टीचर should be sitting in the middle of the circle and children should be all over. So that is also important. Creating stimulating, enjoyable, mental and emotionally, children should be able to understand the environment. That is also important. कभी कभी बच्चा घर से झगड़ा करके आया, मम्मी डैडी का झगड़ा है, पेरेंटल प्रेशर है, or some psychological upset will also create problem in the learning. The next slide. See, all of you, this is very important even for the teachers, for the students, for the non-teaching staff. You have to come out of your comfort zone. अगर आप comfort zone के बाहर नहीं आएंगे तो you are not able to face the fear zone. Fear zone में आपके बारे में लोग opinion बनाएंगे, आपके पास excuse होगा, टीचर के पास excuse होगा, confidence lack करेंगे, communication challenge होगा. Then you come to the learning zone. जब आप when you are coming to the learning zone, knowledge will increase. You will be able to get new skills. There will be new challenges. It is a bottomless pit. The more you learn, the more you progress. It is called as, please write in the chat box. Please somebody write, Sonali ma'am, deep immersive learning. I'm not able to write. If I'm able to write, I would have written it. Deep immersive learning. I'll write it. Please try to understand the meaning of this word. It's a keyword. Deep immersive learning. सारे लोग रिपीट करो, तीसरे बार बता रहा हूं मैं. किसी भी चीज की पढ़ाई डीप इमर्सिव लर्निंग होना चाहिए. ये तो अमर अकबर एंथनी है. पहले आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो अमर फियर जोन है, अकबर लर्निंग जोन में आया, और एंथनी ग्रोथ जोन है. ग्रोथ जोन में यू विल बी एबल टू लिव योर ड्रीम्स, यू विल बी फाइंडिंग पर्पस दैट व्हाई एम आई स्टडीइंग. फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे बोलते क्या सर, क्यों ट्रिग्नोमेट्री, क्यों कैलकुलस पढ़ा रहे, क्या जरूरत है मैथ्स पढ़ के, क्या फायदा. जब आप उस ग्रोथ जोन में आएगा ना, तब यू विल अंडरस्टैंड why you are doing maths. As you know, mathematics is important for artificial intelligence, machine learning, data science. तो वो इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप ग्रोथ जोन में पहुंचेंगे. देन गोल सेटिंग होना चाहिए. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स गोल सेटिंग. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चों के पास गोल सेटिंग नहीं है. बच्चों को पता ही नहीं क्या करना है. जिस बच्चे को पता है क्या करना है वो बच्चा जीत गया. या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस के लिए भी मैथ्स लगेगा. प्लीज सी द चैट बॉक्स. द नेक्स्ट वन, ये हमारे यहाँ है ना, हमारे क्लास में इसको प्रिंट आउट निकाल के लगाना चाहिए. या गोल सेटिंग, बच्चों को गोल सेटिंग समझाना चाहिए. द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और बच्चों को कंफर्ट जोन से निकालना जरूरी है, तो ही बच्चे समझ में आएगा बच्चों को. या वेरी गुड. और डाटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या लगेगा, मैथमेटिक्स लगेगा. यस, प्लीज चेंज द स्लाइड. एडीसी स्टाफ प्लीज चेंज द स्लाइड. You want, you can take the screenshot. Also, I can share the PPT. The MFIRD can share the PPT with everyone. No problem. No copyright act. तो कंफर्ट जोन से आपको फियर जोन में जाना पड़ेगा. फियर जोन में आपको सोचना पड़ेगा, ओपिनियंस आएंगे आपके बारे में, आपके पास खुद एक्सक्यूज होगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होगा. आप जब लर्निंग जोन में पहुंचेंगे तो नॉलेज, स्किल्स और चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप इंप्रूव करेंगे. और कम ग्रोथ जोन में आपको पता चलेगा कि क्या आपका गोल सेटिंग है. यू विल बी लिविंग योर ड्रीम्स. यू कैन अंडरस्टैंड द पर्पस फॉर स्टडीइंग, व्हाट यू वांट टू स्टडी,
and goal setting is important. Who's there? Farhana ma'am, Sonali ma'am, somebody please. Who's there to change the slide? Nobody's changing the slide. The next slide please. Yeah, thank you. इससे पहले वाला, इसके बाद वाला, हाँ अभी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है. कोविड के बाद है ना, हमको बच्चों को आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, एक्सिस्टेंस से एक्सेलेंस में लेके आना पड़ेगा. जितने भी नैक एक्रेडिटेशन मिलता ना, दोज पीपल आर गेटिंग नैक एक्रेडिटेशन, they have to show that they are doing something for the defense of the country. So we have to do that also. We have to eliminate mathematics phobia, which is very necessary. Rishi Sunak का एक आर्टिकल है. Rishi Sunak is the Prime Minister of England. He has made it compulsory for all the Goras, English people, to learn mathematics. It is his opinion that the economy will go down if the children are not able to. So also you should be able to applaud, appreciate and adjust with the kids. If the teachers are there, the parents, always appreciate the do better. Never taunt nahi marna, taunt. Please write taunt. Taunt is a very negative word. Please write it down. किसी भी बच्चों को आप टॉन्ट नहीं करना. भगवान ने उसको सब कुछ दिया है, वो करेगा, लेकिन टॉन्ट नहीं मारना. देखो आपको, देखो अगर आप जो टीचर आपको पसंद आता है ना, आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं. मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता था, हालांकि मेरा मैथ्स अच्छा था, तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ लेते. देन यू हैव टू एंगेज द चाइल्ड. उसके लिए वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग था. कनेक्ट विद द चाइल्ड, एम्पावर द चाइल्ड टू डू बेटर. हाउ डू यू कनेक्ट विद द चाइल्ड? स्पेंड टाइम विद द चाइल्ड. स्कूल का रिक्शा वाला स्कूल के मैथ्स टीचर से ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि मैथ्स टीचर 40 ही मिनट देता है. रिक्शा वाला घर छोड़ने के लिए 1 घंटा, ट्रैफिक में आने के लिए 1 घंटा. बैंगलोर वालों तो 2 घंटा मैटाडोर वाला, रिक्शा वाला, बस वाला अपने बच्चों के साथ टाइम देता है. मैथमेटिक्स का टीचर 40 मिनट्स. तो कनेक्ट किसका ज्यादा है? रिक्शा वाला का. रिक्शा वाला ने गाना लगाया, हाथी के खंडाला, रिक्शा वाला तंबाकू खा रहा तो बच्चे भी तंबाकू खाने लगे. तो रिक्शा वाला का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, उसको भी मोटिवेशन होना चाहिए, उसका भी ट्रेनिंग होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एम्पावर द चाइल्ड, लेट द चाइल्ड मेक मिस्टेक. जो करेगा वही गलती करेगा, जो नहीं करेगा गलती कहां से करेगा? तो गलती करे तो इसको नाम नहीं रखना. और कुरान के अंदर 3 चीजें हैं जिसको मैंने हमेशा कहता हूं मैं. रिंग स्ट्रक्चर है, कोहेरेंस और सिमेट्री है. प्लीज राइट डाउन 3 वर्ड्स: रिंग स्ट्रक्चर, कोहेरेंस, सिमेट्री, which you should also use in your studies. जिसको अनीस कुट्टी ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, किसी और ने नहीं इंट्रोड्यूस किया. उस क्लास का नाम है, मैं चैट बॉक्स में लिखा, सब लोग लिखो, फ्लिप क्लासेस. किसी को पता है व्हाट इज फ्लिप क्लासेस? अगर पहली बार पता लगा तो लिखो चैट बॉक्स में, ऐसा पहली बार हुआ है. क्या बोलेगा? ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा लिखो चैट बॉक्स में. कितने लोगों को पता है लॉट्स टू हॉट्स? ये भी पता होना चाहिए. लॉट्स टू हॉट्स जो स्कूल में नहीं होता. से बच्चों को हाई, दैट इज फ्लिप क्लासेस. यू कैन गूगल व्हाट इज रिंग स्ट्रक्चर, कोहेरेंस एंड सिमेट्री. या अगर सच्ची में ऐसा पहली बार हुआ है तो ये सोचना पड़ेगा खालिद साहब. हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स. इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में पता होना चाहिए क्या है. मैंने ये बताया ना कि क्वेश्चन आंसर टेक्निक नहीं, आंसर क्वेश्चन टेक्निक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए. अच्छा, हर टीचर को, आज मेरा सबसे अच्छा टीचर था उदय सर, और सबसे अच्छा स्कूल सैनिक स्कूल सातारा में पढ़ाया जा रहा था. मैंने वो फोटो देखा, शाहबाज ने भेजा, तो सर ऐसी चीजें पढ़ा रहा था जो मेरे समझ में आया कि बच्चे ग्रास्प नहीं करेंगे. तो मैंने सर को फौरन फोन करके समझाया, सर चेंज करो. तो सर जो है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, इसलिए उदय सर दी बेस्ट है. तो जो टीचर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेने को तैयार नहीं है, वो टीचर का ग्रोथ नहीं होगा. So constructive criticism, write in the chat box. It is lots to horse. मुजम्मिल, lower order thinking skills से higher order thinking skills. Genealogy लिखो, genealogy ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फैमिली ट्री का जानना इंपॉर्टेंस है. आप बोलेंगे फैमिली ट्री का और पढ़ाई का क्या डिफरेंस, क्या करिश्मा है, क्या कनेक्शन है? बहुत मेरा इसलिए अच्छा है कि मेरे डैड का मैथ्स अच्छा है.
मेरा मैथ्स अच्छा है क्योंकि मैं केरला से हूँ, मेरा मैथ्स अच्छा है क्योंकि मैं कुछ फूड्स ऐसा खाता हूँ जिससे भी मैथ्स अच्छा हो सकता। तो जीनियोलॉजी को समझना भी जरूरी है। कई लोगों को ये कनेक्शन पता ही नहीं है कि मैंने फैमिली ट्री को क्यों इंपॉर्टेंस दिया। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर शुड बी टीचिंग विद स्टोरी टीचिंग स्किल्स। नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज एनेक्डोट? एनीबॉडी हु कैन टेल मी व्हाट इज एनेक्डोट? जो भी ये बोलेगा कि मैं ही भारी और मेरा इसे ही सब सही है, दैट इज नॉट राइट। यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। अदर्स ओपिनियन मैटर्स, रिमेंबर, ओपिनियन मैटर करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑडियंस, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। लीना, तैयबा, वंदना मैम, कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? अदनान, आफरीन, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? कहकशा मैम, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? कोमल मैम, रुखसाना, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, सानिया, एनी क्वेश्चन? शगुफ्ता मैम, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? सोनाली मैम, कोई पॉइंट आपको डिस्कस करना है, पूछना है? इंटरेक्टिव है। या यू टेक ओपिनियन फ्रॉम द अदर्स, रेस्पेक्ट द ओपिनियन फ्रॉम द अदर्स। जब क्लास में आप पढ़ाते तो ओपिनियन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडीसी के कोर प्रैक्टिसेस में लीडरशिप होना चाहिए, क्लस्टर्स को लीडर्स बनाना है, थीम बेस्ड असेंबलीज होना चाहिए। इसको है ना, इसको लिखो, बुक चैट बॉक्स में लिखो, मैं लिख के देता। पता नहीं आपको पता है क्या? मीटिंग पड़ता है, पड़ता है। इसको मैं बताता हूँ आपको क्या बोलते हैं। मैं देखो, टैट टैट बोलते, टैट एसएसबी के लैंग्वेज में। टैट टैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख के देता टैट मतलब क्या है, ये इसके बारे में पढ़ो, हमारे एडीसी वालों भी पढ़ो। थीमेटिक एपर्सेप्शन, इसका मीनिंग भी समझो। बहुत सारे लोगों को उसका स्पेलिंग भी नहीं आएगा, ये एसएसबी इंटरव्यू में लेते हैं। व्हाट इज थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट? ये जिसको समझ में आएगा ना, उसको थीम बेस्ड असेंबलीज का मतलब समझेगा। ओपन बुक असेसमेंट होना चाहिए। कई लोगों को इसका आइडिया नहीं है, बोले ओपन बुक क्यों होता है? इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम है, बच्चों को पढ़ाओ और ओपन बुक टेस्ट लो। उनको बोलो, तुमने थ्री इडियट्स पिक्चर देखा क्या? कितने लोगों ने थ्री इडियट्स पिक्चर देखा? उसमें आमिर खान क्या करता, कुछ लिखता है, उसके दोस्तों का नाम लिखता है और बोलता मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, ये टाइम में आप ढूंढो, बुक यूज करो, नोटबुक यूज करो, यूज कुछ भी यूज करो और इसका आंसर ढूंढो। तो बच्चों को गूगल में सर्च करने को भी आना चाहिए। गूगल सर्च करना पाप नहीं है, गलत चीजें गूगल करना पाप है। लिखो चैट बॉक्स में, लिखो, गूगल करना पाप नहीं है, गलत चीजें गूगल करना पाप है। जो टीचर गूगल सर्च करता नहीं, वो टीचर टीचर नहीं है, वो बच्चों के साथ जुल्म करता है, भगवान के सामने उसकी पकड़ है। एडीसी का फुल फॉर्म कोई चैट बॉक्स में पूछ रहा है, लिखो ना। मैं लिखू क्या? अनीस डिफेंस करियर इंस्टीट्यूट। या, थैंक यू। ये अनीस क्लासेस में बहुत ध्यान देना चाहिए, फराना मैम, पीयर टीचिंग, बड़ी 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 सिस्टम बनाना चाहिए। सेल्फ इन्विजिलेशन, बच्चों में आदत होना चाहिए कि खुद ही पेपर बनाओ, क्योंकि अभी एआई आया मार्केट में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको इजी पेपर बना के देगा, मॉडरेट पेपर बना के देगा, डिफिकल्ट पेपर बना के देगा। अगर आपने बुक अपलोड किया ना, तो एआई ऐप है बहुत सारे, 1400 रुपए में आता, आपको उस टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देगा, इजी भी देगा, मॉडरेट भी देगा और हार्ड भी देगा। हार्ड जो क्वेश्चन है ना, उसको बोलते हैं ब्रेन टीजर्स। लिखो जरा, ब्रेन टीजर्स, राइट इन द डे। ब्रेन टीजर्स का क्वेश्चन खुद बना सकते बच्चे और खुद इन्विजिलेशन कर सकते हैं कि मैंने 10 क्वेश्चन हार्ड लिया, मुझे कितना आता। फिर वो जो क्वेश्चन नहीं आता वो बच्चों टीचर से पूछना चाहिए। ओपन बुक असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इन्विजिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयर टीचिंग, ग्रुप बना के बच्चों को पढ़ाओ। एक क्लास में एक बच्चा अगर होशियार है, उसके साथ 4-5 बच्चे और दो, और उसको राउंड टेबल में बिठाओ और पढ़वाओ। ईच वन टीच वन भी इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे को हर टीचर के पास 1-to-1 टीचिंग पढ़ना चाहिए। स्पेशली अभी जब गणपति हॉलीडेज है, बच्चे घर गए, मैं अनीस क्लासेस के लिए बोल रहा हूँ, एक टीचर को एक स्टूडेंट देना। मैंने सुबह 6 बजे से किया है। शाहरुख सर पढ़ा रहे, एक ही बच्चे को पढ़ा रहे, आकाश सर पढ़ा रहे, एक ही बच्चे को पढ़ा रहे, पीपी सिंह सर पढ़ा रहे, 3 बच्चे पढ़ा रहे थे, 5 बच्चे 1:, देखो मैंने एक पैम्पलेट भी बनाया था सोनाली मैम, और पैम्पलेट मुझे चाहिए 1:7, 1:19 और 1:40। प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स।
1:7, 1:19 और 1:40। इससे ज्यादा क्लास का स्ट्रेंथ होना नहीं चाहिए। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 40, वो भी इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आइडियली 19 है। अमर अकबर एंथनी 1:7, 1:19 और 1:40, 4040 आइडियल है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और बच्चा टीचर को कुछ भी पूछ सकता। द माइंड इज विदाउट फियर एक पोएम है, सब कैन समबडी राइट द पोएम, उसका लिंक लिखेगा क्या? वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम है, जहां पे बच्चा, जिस दिन बच्चा डर गया वो मर गया। और डर के आगे जीते, लिखो चैट बॉक्स में लिखो, बच्चा टीचर से डरता है। मेरे को अभी एक लड़की ने एक पूरा चैट भेजा है जिसमें वो एडमिट कर दिया, भैया सर मुझे आपसे डर लगता था इसलिए मैं आपके पास नहीं बैठता हूँ, लेकिन अभी नेक्स्ट सेटअप में मैं आपके पास बैठूंगा। बच्चों को बोलना चाहिए कि दिस इज द बिगिनिंग नॉट द एंड। प्लीज राइट इन द बुक, दिस इज द बिगिनिंग नॉट द एंड। बच्चे का माइंडसेट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये भी लिखो, जो डर गया वो मर गया, शोले पिक्चर का डायलॉग है। बच्चों को डराओ मत, बच्चों का बड़ी बनो, बड़ी। प्लीज राइट डाउन बड़ी। मैं तो बोलता हूँ ना, बड़ी को टिप्स दो। बड़ी बच्चों को, बच्चा का भी फ्रेंड को भी बड़ी बनाओ। चंगू मंगू लिखो, चंगू मंगू। प्लीज राइट चंगू मंगू। कैन प्लीज समबडी रिकॉर्ड दिस? एक्सटेम्पोर बात करता हूं मैं, तो अगर रिकॉर्ड भी करो वैसा एमएफआरडी के साइट पे भी मिलेगा। दिस इज समथिंग व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, इज नॉट एनीथिंग कट कॉपी पेस्ट। वो स्लाइड देखो मैम, पहले वाला स्लाइड। यस, चंगू को मंगू बनाना पड़ेगा। मंगू को चंगू की जोड़ी चाहिए, चंगू मंगू की जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शोले पिक्चर में वो गाना है ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, तो वैसा जोड़ी बनाना पड़ेगा बच्चों का। वो बड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट विल गिव रिजल्ट्स। हाँ, टीचर ने एक जोक मारना चाहिए क्लास में, लेकिन टीचर जोकर नहीं बनना चाहिए, याद रखो। जोक का एडजेक्टिव है जॉक्यूलर। जोक का एडजेक्टिव है जॉक्यूलर। बहुत कम इंग्लिश टीचर को आता है। आई हैव सीन एमए बीएड टीचर्स, लेकिन उनको ये पता नहीं कि जोक का एडजेक्टिव क्या होता है। तो जोकर नहीं बनना है, टीचर कैन नॉट बी अ जोकर, टीचर हैज टू बी जॉक्यूलर। प्लीज राइट जॉक्यूलर। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट जॉक्यूलर, बीइंग जॉक्यूलर। सीरियस फेस, जो स्टेयर करेगा। किसी बच्चे को स्टेयर नहीं करना, बिल्कुल नहीं। मैं तो किसी टीचर ने अगर बच्चों को स्टेयर किया, झापड़ा मारना चाहिए उसको। नेवर डू दैट, नेवर स्टेयर। एवरीथिंग शुड बी फन लर्निंग। फन लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा, मेरे पास एक सिस्टम है। सोनाली मैम भी है, फराना मैम भी है, जितने भी, मैं अभी केरला में था ना, तो ये जो है ना रिजॉर्ट है, पार्क। केरला में बहुत पार्क है जहाँ पे राइड्स होते हैं ना, स्लाइड्स होते हैं, राइड्स होते हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एजुकेशन जोन। आई विल बी टॉकिंग ऑन दिस। मेरा न्यू आइडिया ये है, आइडिया टू एक्सिक्यूशन लिखो। आइडिया तो बहुत रहते, एक्सिक्यूट होना चाहिए। जितने भी पार्क्स है, जितने भी ये स्लाइड्स है, हमारे यहाँ क्या बॉम्बे में ना बड़ा, उसको क्या बोलते हैं सोनाली में, बॉम्बे में बहुत बड़ा ना वाटर पार्क, वाटर गेम्स, वहां पे एक एडू जोन होना चाहिए, एडू जोन। ऐसे जगह बच्चों को पढ़ाना चाहिए, अम्यूजमेंट पार्क्स। या वो क्या नाम है उसका, बड़ा है ना, इमेजिका। इमेजिका को बात करो कोलैबोरेट करने के लिए। हमारा एक ये चाहिए बोला, एडुजोन सेंटर, एडीसी एडुजोन सेंटर आएगा, एडुटेनमेंट। मैं बताऊंगा उसमें क्या करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पार्क में लेके जाओ और स्टार्ट करो, बच्चों को मॉल में लेके जाओ और एजुकेशन स्टार्ट करो। दिस कंसेप्ट हैज टू वर्क ऑन, इट विल वर्क। तो प्रीवियस स्लाइड प्लीज। अच्छा हो गया तो छोड़ दो। नहीं नहीं, ये इसके बाद का नहीं मैम, पहले वाला ये खत्म नहीं हो गया, इससे पहले वाला भी खत्म नहीं हुआ। आप आगे जा रहे हैं, जरा पीछे आ जाओ, पीछे पीछे पीछे। हाँ, यही खत्म नहीं हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी मेक श्योर दैट our students take responsibility for the development and set their own academic targets and collaborate with teachers to achieve it. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एडीसीएम में भी थोड़ा लैग हो रहा है। गोल सेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसको टारगेट देना, और वो उसके बड़ी को भी टारगेट देना। उसके लिए एक्टिविटीज होना चाहिए क्लास में।
स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ऑल एक्टिविटीज, इवन इलेक्शन होना चाहिए क्लास में, वो भी एक्टिविटी होना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. What to do if we are not able to learn answers, sir? If you are not able to learn answers, no. Why to learn answers? We should be able to give answers. Nothing should be learned now. I didn't get your question. You have to be gentle. हाँ, और अगर सामने वाला एग्रेसिव मोड में भी रहेगा ना तो भी सॉरी बोलने को आना चाहिए. हमारी गलती हो तो भी सॉरी बोलना चाहिए, ये सुन्नत है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कचरा डालने आई वो बूढ़ी औरत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक दिन नहीं आए तो पूछने गए कि मेरे पर कचरा क्यों नहीं डाला गया, तो उस बूढ़ी औरत को हिदायत मिल गया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब मैंने प्रॉफिट्स एजुकेशन में से लिया है. बुक भी मैं शेयर करूंगा अबरार सर को. मेटाफर यूज करना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच है. देखो 1400 ईयर्स पहले ये यूज होता था. मेटाफर इज इम्प्लाइड सिंपली, इम्प्लाइड सिंपली. इसके बारे में नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, टाइम नहीं है. फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे अबरार सर अगला MFIRD का टॉपिक रहेगा, यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन टीचिंग. लिख के लो ये. कोई इंग्लिश का टीचर को ज्वाइन करने बोलो ना, फराना मैम, यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. जीनत मैम को या किसी को बोलो ज्वाइन कर रहे हैं, यूज ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच इन टीचिंग. इस पर PPT बनाना है नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लोगों को फिगर ऑफ स्पीच क्या है वो ही पता नहीं. एक स्कूल में गया मैं, बोला फिगर ऑफ स्पीच बता, तो उसने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा. और अपने बच्चों को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी नहीं मालूम इंग्लिश में. कोई लिखेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है? कैन समबडी राइट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच विदाउट मिस्टेक? They cannot. Children cannot. Even if they write, they are not able to write with correct spellings, and they don't know the meaning of it. So we should hold competitions. अच्छा, competitions इसके लिए नहीं है कि बच्चे जीते हारे, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं. मेरे को याद दिलाओ, मैं इससे पहले भी सोनाली मैम को बोला था कि पंचगनी में मेरा एक दोस्त है, वो जहां पे शूटिंग हुई थी 3 इडियट्स की, नहीं 3 इडियट्स की नहीं, आमिर खान का पहले पिक्चर कौन सा, छोटे बच्चे का, तारे जमीन पर. वहां पे एक कपल है जो इंग्लिश टीचर है, और उनके पास ऐसा गेम है जहां पे कोई हारता नहीं, और वो गेम से वो इंग्लिश सिखाते हैं बच्चों को. हाँ हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक जयसल. रिमूविंग लर्नर्स डाउट एंड कंफ्यूजन, इसलिए डाउट सेशन होना चाहिए. 4:40 के बाद अनिस्टा जब छुटता है ना तो डाउट सेशन होना चाहिए. तैयबा, वेरी गुड तैयबा. तैयबा, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ ऑल दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच? व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन का भी यूज करते हैं. इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं? कंजंक्शन किसको बोलते हैं? मराठी का भी लिख के दिया, हिंदी का भी लिख के दिया कंपैरिजन में. तैयबा इज अ सर्टिफाइड टीचर विद अस, यू शुड गेट गूगल सर्टिफाइड. हाँ, ये भी होना चाहिए. हमारे पास जो कचरा है, हमारे पास जो रफ बुक है, हमारे पास जो वेस्ट है ना, वेस्ट से भी हम बच्चों को पढ़ाने को आना चाहिए. नॉर्मली रद्दी में फेंक देते हैं, इसके ऊपर भी बात करना चाहिए. फिर उसके बाद क्या जा, attracting learners attention to do better deeds, that is also important. So if you don't attract the learners, they'll not be able to emphasize themselves. Write down the word emphasize. Emphasis is also important. ये वर्ड का मीनिंग भी है, फिगर ऑफ स्पीच में आता है, emphasis, emphatic. This is also very important. Next, teaching learners what to do if they become angry. बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों को गुस्सा आएगा ना तो टीचर को गुस्सा नहीं आना चाहिए. जो टीचर को गुस्सा आता है वो टीचर नहीं है. मेरा मतलब नहीं कि नहीं मारना चाहिए, लेकिन टीचर को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए. और वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज यूफेमिज्म. हम ये नहीं बोलते कि किसी का अगर डेथ हो गया कि तुम्हारे यहाँ कोई मर गया क्या, हम बोलते गुजर गए. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू यूज अ प्लेजेंट वर्ड फॉर एन अनप्लेजेंट वन, and that is called euphemism. It's a figure of speech. A teacher cannot use bad words. I am also using, but I should also change. I'm rectifying myself. This is very important. Please write in the chat box euphemism. A very, very important word in an English figure of speech. Euphemism. Next slide, please. और ये नबी की सुन्नत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूफेमिज्म का इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज को समझाने के लिए. Yes, sir. It's next one. Next slide.
ये 11 क्रिएटिविटी है जो बच्चों के अंदर आना चाहिए। पहला क्रिएटिविटी क्या है? विलिंगनेस। बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स है। अगर बच्चों को पढ़ना ही नहीं तो कहां से पढ़ेगा? तो विलिंगनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नियत नियत पर मैटर करता। पेरेंट्स ने पैसे भर दिए लेकिन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कैनॉट वी कैनॉट डू एनीथिंग। टुडे आई एम शाहरुख सर वाज टॉकिंग अबाउट इनिशियल इंक्लिंग्स। इनिशियल इंक्लिंग्स मतलब क्या है? व्हाट इज इनिशियल इंक्लिंग्स? Initially, if the child is not able to do the basics, child will not love the subject. तो बच्चा जब क्लासेस ज्वाइन करता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, हमको वी हैव टू चेक वेदर दे नो द बेसिक थिंग्स। आर दे इंटिमेटेड? आर दे अवेयर ऑफ द थिंग्स विच इज गोइंग ऑन? डू दे नो व्हाट हैज टू बी डन? तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसको, कम बैक टू बेसिक्स। प्लीज राइट इट डाउन इन योर चैट बॉक्स। इस पे पैम्पलेट भी बनाओ। कम बैक टू बेसिक्स। फॉल इन लव विद मैथ्स। फॉल इन लव विद मैथ्स। ये डीडीएलजे पिक्चर था ना, उससे डाबा मैंने। तो अगर बेसिक नहीं आया तो मैथ्स नहीं आएगा। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आना चाहिए। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मेरा टॉर्चर है। क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिविटी के लिए डेली टास्क को हम लोग बोलते हैं डीपीपी। आदिल इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वो बड़ा। डीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज डीपीपी? कैन एनीबॉडी राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीपीपी? व्हाट इज डीपीपी? क्रिएटिविटी इज इंपॉर्टेंट इवन इफ इट इज ऑर्डिनरी। हाँ, नैपिंग इज इंपॉर्टेंट। नैपिंग, व्हाट इज नैपिंग? बच्चों को आधा घंटा दोपहर में सोने को दे सकते हैं, इसको बोलते हैं पावर नैप। लिखो, ये हम देना चाहिए लाइव, हमारे हॉस्टल में भी देना चाहिए पावर नैप। खाना खाने के बाद एक हाफ एन आवर, इट शॉट में मोर देन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का पावर नैप, या बच्चा क्लास में भी सो सकता है। हाँ, वो ये टेक्निक है ना, फेमन टेक्निक बोलते हैं उसको। लोगों सब लोग गूगल करो उसको। फेमन, फेमन नाम का आदमी है, उसका टेक्निक है हर 30 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक, या एक जोक मारने का। पीछे मारा तो भी चलेगा, लेकिन जोक मारो। 3 लैंग्वेज एनईपी में इंपॉर्टेंट है। प्लीज राइट एनईपी। प्लीज गूगल दिस 2 वर्ड्स। गूगल करना पाप नहीं है, गलत चीजें गूगल करना पाप है। एनईपी, एनसीएफ, 3 लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया। या मोहम्मद अली इसको पोमोडोरो टेक्निक भी बोलता है। वेरी गुड, थैंक यू। सोनाली मैम, व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? फाइंड इट आउट। पाली, परिकृत और पर्शियन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्रकृत भी इंपॉर्टेंट है। ये तो थिंकर्स होते हैं ना, वो स्लो लर्नर्स होते हैं। हमारे बच्चों को हमको थिंकर्स बनाना, थिंकर्स, जिसको हम बोलते हैं थिंक टैंक। थिंक टैंक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थिंक टैंक। मेंटरिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मेंटर। ट्रैवल। I love to travel. When you travel, you read, and when you read, you learn. मेडिटेशन तो होता है, जैसे 5 वक्त नमाज पढ़ना भी मेडिटेशन है। प्रेइंग है, मेडिटेशन सेंटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रैवल करना, रीड करना और मेडिटेट करना। जितना कनेक्टेड है ऑलमाइटी से, जितना ज्यादा कनेक्टेड है उतना ज्यादा उसको इल्म मिलेगा। और उस जो इल्म भगवान की तरफ से मिलता ना, उसको मैं इल्म नहीं बोलता। इल्म हमको बुक से मिलेगा, लेकिन जो बुक से नहीं मिलेगा, जो आपको बुक्स के बगैर मिलेगा, उसको हिल्म बोलते हैं। हिल्म, HILM। सब लोग लिखो हिल्म। एनीबॉडी, व्हाट इज हिल्म? व्हाट इज हिल्म? ऐसा नॉलेज जो बुक से नहीं मिलता, उसका जो वर्ड है इल्म, जो बुक से नहीं मिलता, एक्सपीरियंस से मिलता, उसको हिकमत बोलते हैं। ये भगवान की तरफ से मिलता है, हिकमत। व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड फॉर हिकमत? ये ऑलमाइटी से मांगना चाहिए हिकमत। हिकमत ऐसी चीज है जो भगवान से मांगना चाहिए, सबको नहीं मिलता। मेरे पास तो गॉड्स गिफ्ट है। आई कैन टेल विथ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, कि मैंने जो कुछ सीखा सेल्फ टॉट है। या हिल्म मिलना मिलना बहुत जरूरी है, और वो दुआ करना भी जरूरी है। हमारे पास एक छोटा मेंदू रहता, वो एक्टिवेट नहीं होता है। उसको 40% रूल बोलता है। आदमी अपना 40% भी यूज करता है दिमाग। छोटा मेंदू, नाना पाटेकर बोलता है ना, छोटा मेंदू 40% यूज होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए। प्लीज राइट कैपेसिटी बिल्डिंग। व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग? बच्चों के पास लेने का बहुत सारे चीजें, तो बच्चे लेते नहीं है।
विजडम ये गॉड्स गिफ्ट होता है, याद रखो, हर एक को नहीं मिलता, लेकिन मेहनत भी करना पड़ता। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड लुकमान्स विजडम? लुकमान अलैहि सलाम का विजडम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा, क्रिएटिविटी के साथ उसको रिवॉर्ड भी होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बोला कि अपलोड करो, अप्रिशिएट करो उसको, उसको एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो। माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। माइंड तभी क्रिएट होगा जब वो गोल सेटिंग होगा। अगर गोल सेटिंग नहीं हो तो माइंड क्रिएटिव नहीं होगा। गोल सेटिंग नहीं हो तो माइंड क्रिएटिव नहीं होगा। रिपीट, माइंड का क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। यू शुड हैव सम परसेप्शन, देयर शुड बी सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। प्लीज राइट द वर्ड स्टिमुलस। कोई ना कोई पीछे से बच्चों को हेल्प करना ही चाहिए। बच्चों से बार बार बच्चा फोकस छूटेगा, बार बार बोलेगा, बार बार करना है, एवरी टाइम। इट इज टॉम एंड जेरी। बच्चा टॉम है और हम जेरी है, या उल्टा वाइस वर्सा। टॉम एंड जेरी लिखो, टॉम एंड जेरी, या वाइस वर्सा। प्लीज राइट वाइस वर्सा। इट विल ऑलवेज हैपन। टीचर को बच्चों के पीछे जाना पड़ेगा, बच्चों को टीचर के पीछे जाना पड़ेगा। कोई भी बच्चा, ये मत, कोई भी टीचर ये मत समझो कि वो बच्चा प्यासा है वो कुआं के पास आएगा, नहीं। आज के जमाने में कुआं को प्यासा के पास जाना पड़ेगा। प्लीज राइट डाउन। टीचर कुआं है तो उसको प्यासे के पास जाना पड़ेगा। आई रिपीट, कुआं को प्यासा के पास जाना पड़ेगा। द टीचर शुड गो टू द चिल्ड्रन। वॉइस नहीं है क्या? वॉइस आ रहा नहीं क्या? आर यू नॉट एबल टू हियर मी? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। देन राइट, हाँ, परसूट। बहुत सारे लोगों को परसूट का स्पेलिंग नहीं आता। वेरी गुड वर्ड। एक सबीरा मर्चेंट थी, मैंने इसका नाम इससे पहले ही बताया। सबीरा मर्चेंट, अभी पता नहीं है क्या नहीं, लेकिन ये सबीरा मर्चेंट यूज्ड टू रन अ शो, एंड द शो वाज व्हाट्स अ गुड वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी। इफ समबडी हैज इट्स लिंक, प्लीज सेंड इट टू मी। इट यूज्ड टू कम ऑन दूरदर्शन। तब हम लोग है ना, फ्लैश कार्ड बनाते थे। ये फ्लैश कार्ड का टेक्निक भी बच्चों को समझाओ, वो सिनोनिम एंटोनिम लर्न करने का। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं उस पर अभी बात करेंगे बाद में। हाउ मेनी ऑफ यू नो डोपामाइन इफेक्ट? या अमन कुमार सर, फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स। वेरी गुड, वेरी गुड। माइंड मैप्स इंपॉर्टेंट, राइट? माइंड मैप्स, माइंड मैप्स। और मैंने बोला ना, निमोनिक्स। निमोनिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निमोनिक्स। और माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड बी 9 planets। तो ये बात लिखना हो, निमोनिक्स इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। आज संडे है। आज द हिंदू न्यूज़पेपर में, द हिंदू न्यूज़पेपर में मैगजीन आता है, संडे मैगजीन। उस संडे मैगजीन में एक बंदा है जो मैं बहुत पसंद कर रहा हूं उसको, बर्टी एशली। बर्टी एशली, उसका क्विज आता है, क्विज। जबरदस्त है। बच्चों लोग अपने बच्चों से सॉल्व करवाओ। मैंने कई बार बताया, उसका एक क्वेश्चन लो, बच्चों को दो। अमर, सेकंड क्वेश्चन लो, बच्चों को बोले इसका आंसर देना है तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, और इंटरेस्ट आएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन दो, और वो थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ आप उनको, तो उसका पैसा लो, 5 रुपए का एक क्वेश्चन। इसी को मैंने कहा कि डीप इमर्सिव लर्निंग। इसको स्टार्ट करो। ये सब करना चाहिए। ये नहीं किया करके बहुत सारा एडटेक कंपनी फेल हुआ। एडीसीआई को एडटेक बनाओ और ये जो मैंने बताया वो करो। कई बार मैंने बोला है। अमर, एक क्वेश्चन बड्डी आशी का, अकबर सेकंड क्वेश्चन उसी पे करेक्टेड, लेकिन वो भी फ्री होगा, दे हैव टू जस्ट शेयर द डाटा। थर्ड इज समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक, व्हिच इज नॉट देयर इन द मार्केट। न्यूज वॉइस इज नॉट कमिंग। आर यू एबल टू हियर मी? फरहाना मैम, आवाज आ रहा है क्या? द नेक्स्ट स्लाइड बच्चों लोग, नेक्स्ट स्लाइड। So you have to, if you want to be creative, please join ADCL and always be creative. बच्चे का जो है ना, अगला दिन
पहले दिन से अच्छा जाना चाहिए। उसके लिए जो मैंने कहा, लॉजिकल रीजनिंग, प्लीज राइट। लारा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में नहीं पढ़ा जाता। नाड़ी स्कूल में नहीं पढ़ा जाता। प्लीज राइट द फुल फॉर्म ऑफ लारा नाड़ी। रागा सब लोग इसका फुल फॉर्म लिखो, अमर अकबर एंथोनी है। नाड़ी मतलब मालूम, नाड़ी मतलब क्या? लॉजिकल एनालिसिस और रीजनिंग एनालिसिस। नाड़ी मतलब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग। लारा लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल एनालिसिस एंड लारा रीजनिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एप्टीट्यूड। नाट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। रागा रीजनिंग एबिलिटी, बच्चों को रीजनिंग एबिलिटी नहीं है। हम लोग बचपन से सिखाते बच्चों को। हमारे यहाँ 3 एग्जाम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नवोदया, नवोदया में हम इंटेलिजेंस 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को सिखाते हैं। फिर सैनिक स्कूल, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा सैनिक स्कूल के एंट्रेंस के लिए पढ़ता है तो इंटेलिजेंस सिखाते। इंटेलिजेंस, प्लीज राइट इंटेलिजेंस। आईबी स्कूल में भी इंटेलिजेंस नहीं सिखाते। आरएमएस एंड आरएमसी, आरएमएस एंड आरएमसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट स्लाइड। या ये सारे स्किल्स होना चाहिए। 1000 रुपीज में हम लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे का एक्सपीरियंस, आगे तो आगे गई, पीछे बैक बैक। 1000 रुपीज में वी डू करियर काउंसलिंग। वी आर नॉट अर्निंग आउट ऑफ इट, बट देयर विल बी 1 hour ऑफ पेप टॉक एंड 1 साइकोमेट्रिक एनालिसिस। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स साइकोमेट्रिक एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोमेट्रिक एनालिसिस, राइट। मीप, मीप का फुल फॉर्म लिखो बच्चों लोग, मीप का इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव का मीनिंग पता है क्या? प्लीज राइट कॉग्निटिव इन योर चैट बॉक्स। रीजनिंग तो मैंने बताया। फिगरल मेमोरी है, जो दिखता है वो बिकता है, वो ध्यान में बैठता है। स्पेशल मेमोरी, वर्बल, सोशल, न्यूमरेसी और लिटरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। एम्पावर, सोशल एबिलिटी आना चाहिए। आर्टिस्टिक सेंस भी आना चाहिए। कल यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में एक आर्टिस्टिक, हाउ टू बी, हाउ द टीचर कैन बी आर्टिस्टिक इन मैथ्स, उसके ऊपर एक लेक्चर था, मैंने बीएनआई ग्रुप पे डाला है। प्रैक्टिकलिटी आना चाहिए भाई। इसके लिए मैं अपने आप को बोलता हूं मैं प्रैग्मेटिक हूं। प्रैग्मेटिक, ये प्रैग्मेटिक का मतलब बहुत लोगों को पता ही नहीं है। प्रैग्मेटिक रहना मतलब प्रैक्टिकल रहना। कॉग्निटिव का भी मीनिंग होना चाहिए। और वो मेरा फेवरेट है, वो लिखो ना, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। उसमें हमेशा बोलता ना मैं, तुम्हारा आईक्यू, तुम्हारा आईक्यू से ज्यादा क्या होना चाहिए? ईक्यू। ईक्यू से ज्यादा क्या होना चाहिए? एसक्यू। एसक्यू और जिस बच्चे का एसक्यू और ईक्यू उसके आईक्यू से ज्यादा नहीं रहता ना, वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता। हम हर एक बच्चे को सिखाते जीतने के लिए, फर्स्ट आने के लिए। सेकंड आए तो क्या करना है ये बच्चों को नहीं मालूम। उसको एडवर्सिटी क्वेश्चन बोलते हैं। प्लीज राइट, इसलिए सुसाइड करते बच्चे कोटा में, एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्योंकि उसको एक ही चीज दिया जाता है, इतना ही करना है बस। एडीसीआई में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लान ए नहीं तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो प्लान सी। हार कर जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। एडवर्सिटी क्वेश्चन पे कोई काम नहीं करता। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, प्लीज राइट डाउन। हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। हर बच्चे के पास अलग अलग कैपेसिटी होता है। उसको भगवान ने दिया रहता, तुमने थोड़ी दिया रहता। हर बच्चे के पास टैलेंट्स होता है। और ये आरडब्ल्यू पोएम का, इमर्सन का पोएम है, टैलेंट्स डिफर, टैलेंट्स डिफर। लिखो ये, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। ऑल इज वेल एंड, ये फिगर ऑफ स्पीच है, एफोरिज्म। कितने लोग एफोरिज्म का मालूम है? मेरे सट्टाज में आता ना वर्ड एफोरिज्म। एफोरिज्म मतलब क्या? हु इज एन एफोरिस्ट? व्हाट इज एन एफोरिज्म? व्हाट, हु इज एन एफोरिस्ट? whom do you call an aphorist? Please find it out. सट्टा का फुल फॉर्म लिखो। व्हाट इज सट्टा? सट्टा पैलिंड्रोम क्यों बोलते हैं?
एजुकेशन में पैलिंड्रोम क्यों इंपॉर्टेंट है? मलयालम पैलिंड्रोम है, वाई मलयालम इज पैलिंड्रोम? अमन कुमार सर, वेरी गुड, थैंक यू। इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अमन कुमार सर, ये भी लिखो ना, वो है ना, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड ना। एक ट्रायंगल ड्रॉ करके बताओ ना। तो एक बच्चे का आईक्यू और एसक्यू, नहीं, एसक्यू और ईक्यू का एडिशन ना शुड बी ग्रेटर देन आईक्यू। याद रखो, एसक्यू और ईक्यू का एडिशन शुड बी ग्रेटर देन आईक्यू। अगर ऐसा नहीं होता तो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। या थैंक यू, जजाकल्लाह फरहाना। ये सब जगह बात करेंगे, मैथ्स टीचर जब भी जाएंगे ना, ये एक्सप्लेन करेंगे कि दो साइड का 1 2 3 का ट्रायंगल नहीं बनता। उसी तरह से मैम थोड़ा सा चेंज है, ए क्यू ने एसक्यू, एसक्यू, एसक्यू और ईक्यू शुड बी ग्रेटर देन आईक्यू। बनाना मैम, एसक्यू होता, एसक्यू प्लस क्या, ईक्यू, एसक्यू प्लस ईक्यू शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन आईक्यू। स्टीवन फ्लेमिंग नाम का आदमी था। स्टीवन फ्लेमिंग, गूगल करो उसको। सेंड नहीं आ रहा, आई एम नॉट एबल टू राइट, पता नहीं। स्टीवन फ्लेमिंग लिखो ना, स्टीवन फ्लेमिंग लिखो जरा। समबडी प्लीज, हाँ या, इसका ये बंदा बहुत होशियार था, इसका आईक्यू भी बहुत स्ट्रांग था, लेकिन इसको चेक करो, इसका ना फलाना में सोशल लाइफ खराब था, ये प्रॉब्लम होगा उसको। सोशल लाइफ भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को ना पीयर लर्निंग करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग करना, बच्चों को ही बच्चों को पढ़ाने लगाना, तो ही वो इंडिया पास हो सकता है। टीम वर्क, नहीं तो इंडिया पास होना मुश्किल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5+2 वाला कंसेप्ट। फर्मनेस इन थॉट्स, डिलीमा, ये डिलीमा बहुत डेंजर है। नीलिमा नहीं बोला, डिलीमा बोला। कहां से लिखो, मैं कहां से, ये मेरा सेंड तो इसको जा रहा है, सेंड टू ऑल नहीं आ रहा, क्यों? अच्छा अभी ला रहा है। ये लिखो डिलीमा, बच्चे लोग सब लोग लिखो डिलीमा, डिलीमा। ये बहुत डेंजर वर्ड है। अगर हमारे पास डिलीमा है किसी चीज पे ना, तो आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा भी कभी कभी बहुत डिलीमा रहता। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी आना चाहिए। पैसा इंपॉर्टेंट है कि टाइम इंपॉर्टेंट है? तो टाइम इंपॉर्टेंट है, लोगों के पास टाइम नहीं है। रैशनल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज। रैशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, रैशनल, रैशनल नंबर भी इंपॉर्टेंट है। सर, अमन सर, बच्चों को बताओ रैशनल नंबर क्यों है? पाई रैशनल है, इरेशनल है? देखो अमन सर, मैं बहुत कीमती बात बता रहा हूं, पाई रैशनल है कि इरेशनल है, और 22/7 रैशनल है कि इरेशनल है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7? प्लीज नोट दिस, मैथमेटिक्स टीचर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाई एंड 22/7? पाई इरेशनल नंबर है, 22/7 रैशनल है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में? आई रिपीट, पाई इज इरेशनल। बहुत कम लोगों को मालूम है बात, लेकिन 22/7 जो है वो रैशनल है। ये टीचर ट्रेनिंग में बोलना पड़ेगा, लाइफ का फंडा है भाई, लाइफ का फंडा है। ये एक बहुत बहुत डीप बात किया मैंने, आई डोंट नो तुमको समझ में आएगा नहीं। हाँ, अगर ये समझ में आया ना तो बहुत सारी चीज समझ में आएगा, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। दूसरा क्या है? थिंकिंग, बिहेवियरल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल इंटरपर्सनल स्किल्स और इंट्रापर्सनल स्किल, इंटर और इंट्रा में फर्क है, इंटर में और इंट्रा में फर्क है। ये लोगों को समझ में नहीं आता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स, एंड हाउ डू यू डेवलप दैट? वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेल्फ केयर। आदमी है ना, अपने पर मेहनत नहीं करता। इसके लिए मैंने गाना लिखा है, MFRD का प्लेटफॉर्म है, इसके लिए नहीं लिखा, लेकिन ये मैं गाना लिखता, हमको हम ही से चुरा लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सब लोग लिखो ये, सेल्फ केयर देते नहीं हम लोग, इसलिए हम लोग डेवलप नहीं होते।
ये गाना गाना जरूरी है, हमको हम ही से चुरा लो। अदर बिकॉज इफ यू डोंट हैव सेल्फ केयर यू विल नॉट इंप्रूव योर सेल्फ। मैंने बताया ना 40% यूज होता है। कंपल्सिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बच्चों को किसी चीज पे कंपल करना जरूरी है। कंपल्सिव नहीं यूज करें, कंपल्सन नहीं देंगे तो बच्चे करेंगे नहीं। बच्चों का बच्चे लोग एंग्जाइटी भी बहुत रहता, एंग्जाइटी भी एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी बात होना चाहिए। इसलिए साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात मैंने पहली बार किया। लोग ऐसे लिखो ऐसा पहली बार हुआ है। मेरे ये जो मेरा कंसेप्ट है ना पाई का 22/7 का, ये मेरे लिए भी पहली बार मेरे दिमाग में लगा है। मुझे पता है रैशनल इरेशनल है, लेकिन ये फंडा टीचर ट्रेनिंग में कैसे यूज करना इसके बारे में बात करूंगा। लिखो ऐसा ऐसा पहली बार हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा पहली बार हुआ है। इसी टॉपिक पे मैंने एएमपी में भी बात किया था। अभी नाउ आई एम टॉकिंग ऑन एमएफआईडीए प्लेटफॉर्म एंड ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स आई एम टॉकिंग, नॉट द सेम थिंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग टेक्निक्स देखो क्या क्या है। रेटोरिकल डिवाइस, देखो रेटोरिकल क्वेश्चन एक फिगर ऑफ स्पीच है, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Rhetorical question is a figure of speech where question is asked not for the answer but for emphasis. Anybody who can tell me what is why do we make use of rhetorical question? This is a figure of speech which is मेरे नबी ने भी यूज किया है। कितने लोगों को बात मालूम है कि मेरे नबी ने ये फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है 1400 साल पहले, 1400 years before. So remember this. You have to understand that. Next, true story. Stories बताना चाहिए। If you see the religious books, उसमें stories है। There are stories in Quran also. जिसमें एक story है, I always say, सूरह यूसुफ। इसका सूरह यूसुफ के बारे में जो सूरह है, वहां पे ऑलमाइटी ने एक में मर्तबा किसी और नबी का जिक्र नहीं किया। So you should read ये तीन चीज ये सूरह यूसुफ में आपको मिलेगा, और वो मैथमेटिक्स में भी है। रिंग स्ट्रक्चर, सिमेट्री, कोहेरेंस। डिवाइड सूरह यूसुफ 12 पार्ट्स, you'll find it out. ड्रॉइंग लॉट्स, व्हेन यू आर इन डिलीमा, हमको दो बच्चों को गिफ्ट देना है और हम डिटरमाइन नहीं कर सकते किसको देना है, तो रिमेंबर दैट यू हैव टू ड्रॉ लॉट्स। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। फेवरेटिज्म कभी नहीं करना चाहिए। जब फेवरेटिज्म करना पड़ेगा, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, जब यू आर इन अ डिलीमा तो ड्रॉ लॉट्स। देखो प्लीज राइट, ड्रॉ लॉट्स अपने बच्चों में भी और अपने स्टाफ में भी और बाकी चीजों में भी। फेवरेटिज्म से बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्जाम्पल क्रिएट करो। एग्जाम्पल का वर्ब है, मैं हमेशा लिखता, लास्ट टाइम भी लिखा, एग्जाम्पलरी एडजेक्टिव है, एग्जाम्पलीफाई वर्ब है। एग्जाम्पलरी और एग्जाम्पलीफाई वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लोगों की गलतियों को छुपाओ। अगर हम बच्चों की गलतियों को छुपाएंगे ना तो बच्चे बड़े कर होके हमारी गलतियां छुपाएंगे। अगर हम बच्चों की गलतियां, शॉर्ट कमिंग्स, हमारे स्टाफ का, हमारे माताहत लोगों के, अगर हमने गलतियों को बताना चालू किया तो लोग हमारी गलतियों को भी उजागर करेंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे जाओ, मैंने इससे पहले भी बताया, राइट? बीना, बीना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। G20 में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को जमा किया ना, उसमें वन पर्टिकुलर थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड इज अफ्रीका। द एंटायर अफ्रीका वाज रिप्रेजेंटिंग वन कंट्री, द अदर्स आर वेर 19 कंट्रीज। तो दैट वी हैव टू लर्न। अफ्रीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल जाना चाहिए। बच्चों का कान पकड़ना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। हाँ, और मैंने ये भी बताया ना कि आप जब भी when you are there is a mother teacher, then there are two subordinate teachers. The mother teacher should not feel very arrogant. Mother teacher should not be arrogant. लिखो,
Mother teacher should not be arrogant. Mother teacher should not be arrogant. और असिस्टेंट टीचर को पढ़ाना चाहिए, असिस्टेंट टीचर को हेल्प करना चाहिए. शुड बी हेल्प्ड. अगर आपको हेल्प करना है, ईगो, जिस टीचर को ईगो है वो टीचर नहीं बन सकता. टीचर में ईगो नहीं होना चाहिए. गिवर्स गेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अभी उदय सर से बात कर रहा था कि उन्होंने कहा कि सारे बच्चे बैठेंगे. मैं बोला बैठो, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट लिए पढ़ाते ही नहीं है. यू हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी प्रोडक्टिव. वी शुड गिव वॉट एवर वी कैन गिव. ईगो जो है ना बहुत खतरनाक चीज है, गलत जगह ले जाएगा. और बहुत इंपॉर्टेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी. सब लोग लिखो फॉर फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एवर्शन, जिसको है ना, मैं इसको बोलता हूँ एनास्ट्रॉफी. ये देखो, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा एनास्ट्रॉफी? इंग्लिश टीचर्स को भी नहीं मालूम रहेगा. एनास्ट्रॉफी इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसका दूसरा नाम है इन्वर्जन. इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट वी कॉल रोल प्ले. टीचर को बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ेगा. प्लीज राइट रोल प्ले. नेक्स्ट. रिपीट 7 आवर्स इंपॉर्टेंट है. इनोवेशन इंपॉर्टेंट है. 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो सब लोगों ने लिखना चाहिए. इनोवेशन, इनोवेशन. और एक वर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसरप्शन. और ये दोनों तभी आएगा जब तुम्हारे पास क्रिएटिविटी है. ये तीनों का कॉम्बिनेशन, इसके लिए मैं उसको अमर अकबर एंथनी बोलता हूं. एपिग्राम. एपिग्राम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच. एपिग्राम एक शॉर्ट, एपिग्राम जो है ना, वेरी गुड क्वेश्चन. एपिग्राम इज अ फिगर ऑफ स्पीच. शॉर्ट वाइज सेइंग है वो. In the initial, you will find it is contradicting, but it has a deeper meaning. That is called epigram. वो है ना, squirrel can crack a nut but cannot climb a mountain. ऐसा बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच है. फिगर ऑफ स्पीच पे बाद में बात करूंगा. 4 minutes to go. Any question you have to ask, you can ask. 12:30 I'll be stopping. Identifying talent is very important. Filtering is important. Identifying talent is important. So what is the, can please audience, can you give me the feedback of the lecture that you heard for half an hour, 1.5 hours? What was the strength of my lecture? What did you understand? नया क्या सीखा? What is the weakness? लेट आया था, नेट का प्रॉब्लम था, टेक्निकली स्किल नहीं है मैं. What is the opportunity? What did you learn? You gave your 1.5 hours of your life. What did you learn from this? And what was the threat? Was it useful? Or was it a waste of time? हाँ, वेरी गुड. सही बात. एटीट्यूड से एल्टीट्यूड पे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एटीट्यूड आपको एल्टीट्यूड पे लेके जाएगा. एटीट्यूड आपको एल्टीट्यूड पे लेके जाएगा. लेकिन एटीट्यूड में और ईगो में बहुत थिन लाइन है. वो एटीट्यूड को ईगो पे कन्वर्ट नहीं होना चाहिए. या so see, that is what I said now. Whenever the words which are used is called this, the way of this technique is called keywords technique. Keywords are very important. When you teach also, now the keywords are very important. Even in Quran, 50% of the words are repeated. So keywords से पढ़ाई करना बहुत important है. Yeah. You have to be teacher always. Yeah, very good. Thank you, ma'am. How to live? You have to be live. Education is entertainment. Remember, I use the word edutainment. Anything else, ma'am? बोलो. Filtering का मतलब, anybody else? What I missed out? Next time I'll be speaking on figure of speech, which is very necessary.
G20 अभी हुआ ना, वो उसमें अफ्रीका द एंटायर अफ्रीकन नेशन इज अ कॉन्टिनेंट. Mother teacher should never be arrogant. Mother teacher should not feel that I am above the others. हाँ, cradle to grave, yes sir, it can be. Yes, teacher training is free. Khalid bhai, teacher training is free at ADCI. Offline, online के lectures होते हैं, YouTube पे आते हैं, that we don't charge, but offline teacher training is free at ADCI. Can somebody please write it down? Offline teacher training is free. At ADCI. What is meant by question tag? Question tag is very important. Question is not asked for answers. It is also asked for emphasis. ये बहुत ही मैंने बताया, मैंने एक वर्ड यूज किया ना इससे पहले भी. What is the difference between empathy and sympathy? ये भी बताने से. How many days? 3 days, 10 days, 40 days, 4 months, no problem. रहना और टीचर ट्रेनिंग फ्री है, खाने का पैसा देना पड़ता. I will share the book with Abrar sir. I have their number and they will share it to you. The name of the book is The Prophet's Philosophy of Education. Prophet's Philosophy of Education. Yeah, the classroom has to be live always. So this PPT is there for more time, but inshallah the next time, whenever I can, whenever they give me a chance. Yeah, the name of the book is Prophet's Philosophy of Education. मैंने लिखा है. मैं बुक आपको भेजता हूँ. अबरार सर, आप उसको लोगों को भेज सकते हैं, दे सकते हैं. I'll send it to you. Sorry. Can I close the meeting? Anything else? वैसे तो और भी पीपीटी है लेकिन काफी टाइम हुआ. नेक्स्ट टाइम. सॉरी फॉर बीइंग लेट. क्या समझ में आया? लीना, फरहान, छोटी फरहाना, वंदना मैम. फरहाना मैम, आपको क्या समझा? मुझे पर्सनल चैट में भेजो. व्हाट यू लर्न न्यू? लीना, तैयबा, वंदना मैम, आफरीन, अमन कुमार सर, क्या समझ में आया? अली, वट एवर यू लर्न. कैकशा मैम, कोमल मैम, क्या सुना? मारिया, मरियम, समथिंग. रुखसाना, रिंकू, व्हाट यू वर एबल टू लर्न? समथिंग न्यू, लेट मी नो. सानिया, शगुफ्ता, शगुफ्ता मैम, अफशा, शरीफ सर ने भी ज्वाइन किया. शरीफ सर को पूछो क्या सुना. शरीन, क्या समझा? जजाकल्लाह खैर. तस्लीम मैम, क्या समझ में आया? वैशाली मैम, एंड थैंक्स एवरीबॉडी. थैंक्स एबीफीआरडी for giving me opportunity to speak on a platform. Jazakallah khair. Jazakallah, sir. And it's our pleasure to have my you. number is been shared. If anybody want, you can connect to them. Yes, activity-based learning is important.